Hello student, today we will discuss the Louis Bennett poem Colonization in Reverse. First of all, we will discuss about the biography of the writer. I told you already, Louis Bennett is the proponent of the Patois language, Patois culture, and she was the poet, and she was the actor, and also she was the social activist. And in her whole life, she spent working for highlighting the culture, heritage, music, values, norms of the Jamaican people. And because she belongs to the Jamaican island, and Jamaican island, I told you before, they got the independence in late 1800. And after the independence, when they got the independence from the Britishers, the Patois language was not a pure language, but it was the mixture of the different people, different languages and cultures. So basically, at that time, I told you already, wherever and whenever the Britisher occupied the land of any country, region, always the influence of their language on the local people, जो local dialects होते थे उस पर हमेशा influence रहा है. इसी वजह से जो local Jamaican language था उस पे भी influence हुआ. That's why when we will read the poem, we will see the words of English with the Jamaican language, Patois language जिसको कहते हैं. उसकी रीज़न ये क्योंकि इनका प्योर कल्चर तो जमैकियन है, ठीक है. तो यहाँ आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स जो हैं वो नज़र आएंगे जो कि जमैकियन लैंग्वेज के हैं, बिकॉज शी ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट हर ओन लैंग्वेज. तो यहाँ पे भी आपको मुख्तलिफ करेक्टर्स के साथ, जैसे मिस मैटी है, जैन है, आंट फैन है, when she was doing the conversation, और एक conversational style में जब वो बात कर रही होती है, and she was questioning from these characters and giving the answer to these people. तो basically वो अपनी लैंग्वेज के वर्ड्स भी यूज़ कर रही होती है. एंड इवन आप अगर इनके इंग्लिश के वर्ड्स देखें तो दे आर नॉट कंप्लीट द इंग्लिश वर्ड्स. बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो एट द एंड आपको वर्ड के, जैसे किलिंग का जो पिछली इसकी जो पोम थी, द बैंड्स, द किलिंग नहीं थी, किलिंग थी, अजी जो थी वो साइलेंट था. यहाँ पे भी बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे, जैसे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का वर्ड में जो डी है उसे साइलेंट कर देगी. तो बेसिकली शी वॉज ट्राइंग टू प्रमोट द लैंग्वेज. यहाँ पे जो एक रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलोनियल पावर और कॉलोनाइज्ड पीपल उसका डिपिक्ट किया है. और सिमिलरली अगर आप देखें इसके स्टैंजा को, 11 स्टैंजाज हैं. कोई राइमिंग स्कीम को अगर देखें तो ए बी और सी बी के राइमिंग स्कीम है, कोई सिमिली नहीं है, कोई मेटाफर इस्तेमाल नहीं किया गया. पेटवा स्पेलिंग्स आर यूज्ड इन दिस पोम स्पेशली. सो अगर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल के हवाले से अगर देखें तो colonization in reverse is basically telling that once there was a time when the British were ruling on the Jamaican island, जो Caribbean region था उस पर, they occupied that land and they were using their resources, their people, assets, everything they were utilizing at that time, ठीक है. And the Jamaican people, they were colonized people, ठीक है. At that time they were just following the rules and regulations, and they were doing the jobs according to the opportunity that were existing according to the will of the colonizer. जो उनको opportunities employment के हवाले से, prosperity के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और जो जो उनको अवेलेबल थी फ्रीडम, वो उसके जो इंग्लिश रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स हैं, के अकॉर्डिंगली वो फॉलो करते थे. लेकिन यहाँ पे अगर आप पोम को देखें तो उसकी सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि कॉलोनाइजेशन इन रिवर्स, कि वो जो प्रोसेस था कॉलोनाइजेशन को अब रिवर्स हो गया. अब क्या हो रहा है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जमैकियन island and the Jamaican people, they started to going from their own homeland to the England. अब क्या हो गया कि when she was basically she was in telling us in the humorous way that the people who were once colonized, now they are moving towards the England, the England which was the empower, that was the
द एम्पायर ऑफ द सीट कहा जाता था, जिसका सूरज कभी गरूब नहीं होता, मशरिक से लेकर मगरिब तक दे वर रूलिंग एट दैट टाइम। कोई कंट्री ऐसा नहीं था, दे वर यूजिंग देयर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ट्रेड इनकी हो रही थी, जो सी रूट्स थे, दे हैव ईच एंड एवरीथिंग दे इंजॉयड। तो उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम तो जो है दे वर डूइंग देयर ओन थिंग्स, बट लेकिन अब क्या प्रोसेस, व्हेन दे आफ्टर द वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बाद हमेशा ये होता है कि जो वॉर्स होती हैं दे ऑलवेज द साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन, डेविस्टेशन, डिसल्यूजनमेंट का भी एलिमेंट होता है, लोगों के दरमियान क्योस क्रिएट, क्योटिक सिचुएशन, अनार्की क्रिएट हो जाती है, इकोनॉमी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो जो क्लोनाइज्ड कंट्रीज होती हैं दिस दे विल स्टार्ट टू टेक द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लोनाइजर्स। सो क्लोनाइज्ड पीपल जो एक जो महकूम होते हैं आहिस्ता आहिस्ता दे विल स्टार्ट टेकिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द क्लोनाइजर। इसी तरीके से अगर आप इस पोम में भी देखें कि जब उन्होंने इंडिपेंडेंस गेट की उसके बाद नाउ दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द जमैकियन आइलैंड टू द इंग्लैंड। अब इसी वजह से वो कह रही है, व्हाट अ जॉयफुल न्यूज़ मिस मैटी, दैट Jamaican peoples now they are now Jamaican people who were once they were the colonized people, they are now trying to colonizing द इंग्लिश पीपल। जो इंग्लिश पीपल है उनकी अब बारी हो गई, बिकॉज जो अब जो कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो गया है। सो अब क्या हो रहा है अराउंड, वो कह रही है कि एट दैट टाइम ऑल्दो द फेयर वर वेरी चीप, द people were trying to go there, from the Jamaican island to the England. Even thousand peoples, they were loaded in the ships, in the planes, and they are moving from Jamaican land to the England for the better opportunity for their livelihood. और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जब there are many people in the Jamaican island, they don't like to travel, ठीक है, और उस टाइम के अंदर हैं दे ओपन द एजेंसीज, ट्रैवलिंग एजेंसी उन्होंने ओपन कर ली हैं, और दे वर गिविंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द माइग्रेशन प्रोसेस, और बिकॉज द वीज़ा प्रोसेस बिकेम वेरी वेरी ईजी, और इसी वजह से ज़्यादा से मैक्सिमम पीपल हैं दे वर मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लैंड। तो अब वो कहता है कि जब ये सारा प्रोसेस हो रहा है, कोलोनाइजेशन इन रिवर्स हो रही है, तो इसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स, जो जो चीज़ें फेस करनी पड़ी जमैकन पीपल को इन द इंग्लैंड, शी ऑल्सो डिस्कस्ड ओवर देयर कि इस माइग्रेशन के प्रोसेस में द पीपल, सम पीपल वर getting the jobs, but what they are doing over there, they have to pay the extra money for getting the opportunities, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए आपको जॉब की ज़रूरत थी, you need a accommodation, you need a food, and for the search of the bread, and for the search of the money, and for the better education for their children, for their own self, they are moving towards the England. तो क्या हो रहा था कि इवन जो उनके रिलेटिव फ्रेंड्स, जिसमें से जैन थी और जो आंट फैन थी, शी वॉज ऑल्सो टेलिंग द रिलेटिव इंफॉर्मेशन दैट कि सम टाइम कि ऐसा भी होता था कि द पीपल हैव टू पे द 2 pounds फॉर गेटिंग देयर वर्क, ठीक है, और इसी तरीके से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते थे, और इस तरह बेसिकली इट वाज ट्राइंग टू शो द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द Jamaican people, how much they have suffered, and what are the critical condition they faced। और उसके अलावा ये भी डिस्कस करी होती है कि हमेशा ये होता है कि जब आप जैसे फ्रांस फैनन कहता है कि जो साइकोलॉजिकली जो क्लोनाइजर, दे ऑलवेज इम्पैक्ट ऑन द क्लोनाइज्ड पीपल, एंड दे वर स्टार्ट इंटरप्लेटिंग द culture, value, norms, education, standard of living, clothing, and even they thinking about their self as inferior, because they are starting to think about according to the colonizer। दे हैव नॉट एनी कंसेप्ट, दे हैव नॉट क्लोनाइज पीपल, जो महकूम लोग होते हैं उनका कोई, उनकी सोच नहीं होती, उनका कोई वो कहते हैं ना पर्सपेक्टिव नहीं होता, टारगेट नहीं होता, गोल नहीं होता। वट एवर द क्लोनाइजर, जो ब्रिटिशर्स उनको कह रहे थे, दे आर थिंकिंग अबाउट दैम कि दे आर अनसिविलाइज, दे आर सेवेजेस, दे आर इन्फीरियर, तो वो अपने आप को वैसे ही कंसीडर कर रहे थे। और इसकी वजह से क्या होता है कि वो साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ा
होता है, और they are starting to imitate the culture values of the Britishers. तो इसी तरीके से जो colonized people, जो Jamaican people हैं, they were also influenced by the English people, and they are also trying to get the एक इंस्पिरेशन होती है हमेशा कि आप किसी भी बंदे को अगर वेल्दी देख रहे हैं, उसकी ड्रेसिंग ईच एंड एवरीथिंग, तो आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो इसी वजह से जमैकन पीपल दे मूव फ्रॉम देयर नेटिव मदरलैंड टू द इंग्लैंड. But problem is that English people didn't like that the Jamaican people are moving towards their country. अब वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट हुई है वो, ऑल्दो दे आर वॉचिंग देम इन द स्ट्रीट्स, दे आर डूइंग चीप जॉब्स एंड वट एवर अपॉर्चुनिटी दे आर गेटिंग, दे आर डूइंग फॉर द मनी. बट ये कि उनको डिस्क्रिमिनेशन और जिस तरीके से रेसिज्म का सामना करना पड़ा वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. तो बेसिकली दिस पोम इज़ ironic. This poem is basically satire on the English society, and what are they thinking about the Jamaican people, black people. और इसी तरीके से एक माइग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया है. इसके अलावा कल्चर शॉक्स के हवाले से कि कल्चर शॉक्स जब वर्ल्ड वार 1 हुई, वर्ल्ड वार 2 हुए, और जो ब्रिटेन है लॉस्ट देयर कंट्रोल ऑन द क्लोनाइज्ड पीपल. हमेशा ये होता है कि इंडिपेंडेंस जो पेरीफेरीज होती हैं, जो कॉलोनीज होती हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू गेट द इंडिपेंडेंस ओनली व्हेन द कॉलोनाइजर बिकेम वीक थ्रू देयर इकोनॉमी. जब जिस कंट्री की इकोनॉमी वीक, जैसे सोवियत यूनियन को भी अगर देखें तो उसमें से 6 to 7 स्टेट जो इंडिपेंडेंस गेट की बेसिक रीज़न ये, दे आर अनएबल टू गेट द कंट्रोल ओवर दी स्टेट्स. तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है. इसी वजह से यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, और इसी तरीके से रेसिज्म को उसने डिस्कस किया है, उनके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है. और वो कहती है कि जिस तरह वो एक डॉल थी इंग्लिश बंदी के साथ, जो थी आंट फैन, और जो है वो जो जैन थी, देवर टेलिंग कि देवर लिविंग एट दैट टाइम, और मुख्तलिफ प्रोस्पेक्टिव से वो चीज़ों को डिस्कस कर रही थी कि कुछ लोगों की लाइफ जो होती है, दे आर सिटिंग ऑन द चेयर काउच एंड दे आर रीडिंग द रोमांस नॉवेल्स, और कुछ लोगों की इतनी हार्डशिप वाली लाइफ होती है. तो दीज आर द थिंग्स. some are enjoying the privileges of द इंग्लैंड, लग्जोरियस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं even they have to get the job for the £2. तो बेसिकली ये सारी उस सारे सिनेरियो को डिपिक्ट करी है, और इट्स ऑल अबाउट दिस पोम. और किस तरीके से एक जो है इंग्लैंड, जो वंस देयर वाज अ टाइम इट वाज कॉल्ड द एम्पायर सीट, नाउ it was the most powerful nation of the world. But after the World War 1, World War 2, their economy weak and they lost the control. और किस तरीके से वो सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो कहते हैं ना ईगो का एलिमेंट, उन लोगों के अंदर उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द अदर नेशंस वर ऑलवेज द सेम. एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं है, लो वेजेस की सूरत में, कि वो एशियंस जैसे हैं जमैकियन पीपल, उनको लो वेजेस पे कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं डिस्कस. इन केस ऑफ any query you can give the comment. It's all about that poem. Thank you very much.